اور آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم کلام سے پڑھیں گے زبور کی کتاب اور اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی آیت۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ خدا کے اس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پہ بڑی برکت ہو، آشیش ہو۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی پرارتھنا کرتے رہے ہیں آئے دنوں میں، پاسٹر پرمیش سے میں بنتی کروں گا کہ وہ ہمیں دعا میں لے کے چلیں۔ پاسٹر پرمیش۔ Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. پیارے پربھو یسوع مسیح، ہم آپ کی مہمہ، آپ کی ستوتی، آپ کی بڑائی کرتے ہیں اس مبارک دن کے لیے جو آپ نے ہم سبوں کو دیا کہ ہم سب آپ کے حضوری میں آ سکیں۔ ساری آشیشوں کے لیے جو بیتے ہفتے میں آپ نے ہم سبوں کو دیا، اس کے لیے ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں اور بنتی کرتے ہیں پربھو جی ان بیماروں کے لیے جو پربھو جی کہیں نہ کہیں ہر ایک کو کسی نہ کسی طریقے کی تکلیف ہے، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں پربھو کہ یہ انتم سمے ہے، ان ٹائم پر پربھو یہ ساری چیزیں ہوں گی تاکہ ہم اپنے ایمان میں اور مضبوط بنے، اس لیے نہیں کہ ہماری یہ کمزوری ہے، پر اس لیے کہ ہم اور اس میں مضبوط بنے اور ساری چیزیں پربھو یسوع مسیح آپ کے ہاتھ میں دیں۔ ہم ساری مہمہ، سارا آدر دیتے ہوئے اس دعا کو مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین۔ اب آئیے ہم آگے بڑھیں گے، ورشپ میں جائیں گے اور ہمارے ساتھ ورشپ ٹیم ہے۔ میں ورشپ ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ورشپ میں لے کے چلیں۔ ورشپ ٹیم۔ نہ دکھ مصیبتیں آوے، نہ دکھ مصیبتیں آوے، نہ شیطان بھی آوے تیرے نام کے جتنے چلو کم میں چاہتا ہوں پہلے اس گیت کو گائے، سب مل کے گیت کو نام کے رام نگر کے گیت کو گائے گئے۔ تاری ہاللویا تاری ہاللویا 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 تیرے نام سے جتنا جڑ پورے میرے یوگی تیرے نام سے جتنے کلو کم ہو جڑ پورے یا تو مصیبتیں آوے، نہ تو مصیبتیں آوے، نہ شیطان آوے تیرے نام سے جتنے کلو کم ہو جڑ پورے میرے یسوع جی تیرے نام سے جتنے کلو کم ہو جڑ پورے میرے تاریخ ہاللویا تاریخ ہاللویا تاریخ ہاللویا
ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਲਟੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕਰਵਾ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕਰਵਾ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਰੀ ਹੱਥ ਤਾਰੀ Hallelujah, hallelujah, the underborn, not the work the underborn, not the work Yesu Raja hove tere, Yesu Raja hove tere, har dam char shakre jitte gulo jad pure mere Yesu ji tere naam te jitte gulo mere Dari, hallelujah, Dari, hallelujah, Dari, hallelujah, Dari, hallelujah, Dari, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. यीशु के प्यासे काले दामन है कासे सभी चीज पुकारे पागरू यीशु के प्यासे काले दामन है कासे कोई तृष्णा लौटे कोई तृष्णा लौटे चलिया न चाहते एक सबसे मिलकर पाकरू यीशु के प्यासे यीशु के प्यासे काशी चांद काफे सालिदार है काते कोई कृष्ण गाया
ना लौटे, कोई कृष्णाया ना लौटे, चलिया में न जाए, यीशु के प्यासे अदीदा है आसे, आगे यीशु के प्यासे अदीदा है आसे, कोई कृष्णाया ना लौटे, कोई कृष्णा ना लौटे, चलिया में न जाए, यीशु के प्यासे यीशु के प्यासे, यीशु के प्यासे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you. We welcome you. उदावन को आत्मा से Thank you. आत्मा की समझ बढ़ती है और उदावन जितने लोग भी आपकी हजूरी में सरों को चिपकाए और आपकी उपस्थिति में प्रार्थना में उदावन सभी पे पहुंची Yes. आपकी आत्मा में पाए और इस सामर्थ वाला आत्मा में पाए खुदा पेश Thank you, Jesus. आज के वचन के लिए प्रभु आज में स्टार्ट करें इसका मिशन और प्रभु आपके पास प्रभु जी आपके पवित्र वचन को लेकर आए तब उस में प्रभु जी आपका आत्मा आपके आत्मा की सामर्थ प्रभु जी हमसे बात करने पाए धन्यवाद करते हैं और ये साधु और प्रार्थना आपकी प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। Hallelujah. 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 सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है? जी जी मसीह हमारे बीच में हमारे प्यारे पास्टर फिलाडेल्फिया से जेम्स लतीफ हमारे बीच में है। मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें कलाम के लिए दुआ में लेके चले ताकि इसके आगे खुदा का कलाम जो हमें देगा उसे हम सुनेंगे। पास्टर जेम्स लतीफ। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू। Glory to God. Amen. इस खूबसूरत वर्शिप के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए, समा के लिए जो खुदावंद ने अपने ठहराए वक्त के मुताबिक हम सबको दूर दराज से इकट्ठा किया है, हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र बजाते हैं। और खुदावंद की इस पाक हजूरी में मेरा ईमान है कि आज खुदावंद बड़े जोर से अपने खादम को इस्तेमाल करने को है। हालेलुया। थैंक यू। उसके गहरे मुकाशफा जो हैं खुदावंद के कलाम के वो आज जाहिर होने को हैं ताकि लोग तसल्ली पाएं, लोग कुव्वत पाएं और इत्मीनान पाएं। आमीन। आइए हम खुदावंद से दुआ करें, मेरे साथ मुत्तफिक हों, हम सब मिलकर खुदावंद से दुआ करेंगे। खुदा का खादम तब तक नहीं बोलेगा जब तक आप अपने लिए खुदा के कलाम को नहीं मांगेंगे। आमीन। आइए हम सब खुदावंद से अपने आज की रूहानी तरक्की के लिए खुदा के खादम को खुदावंद की पाक रूह के ताबे करते हैं ताकि आज खुदावंद का जलाल जाहिर हो। यहोवा पाक खुदा, तू जो अज़ली अब्दी ला तब्दील ला ज़वाल खुदा है, तू जो हमारी चेहरे की रौनक और हमारी उम्मीद का है, हम सारा जलाल खुदाई कद्दूस तेरे अजीम और जलील और कद्दूस नाम को देते हैं। यस लॉर्ड। हम सारा जलाल खुदाई कद्दूस
तेरे उस रूल कुदस के ताबिया होकर खुदा बाप तेरे बंदा को जो आज तेरा कलाम लेकर आया है, जो हमारी तसल्ली के लिए है, हमारी निजात के लिए है, हमारी शादमानी के लिए है, हमारी रूहानी तरक्की के लिए है। आज तू उसे खुदा के दोस्त बड़े जोर से इस्तेमाल करना, अपने जलाल को जाहिर करना, खुदा बाप उसे अल्फाजों की तरतीब देना, और खुदा बाप जो तेरा कलाम उसके मुंह से निकले वो खुदा बाप हमारी जिंदगियों में एक नई ताजगी को लेकर आए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन 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 आमीन। हमारे बीच में खुदा का खत लगा हुआ है जो अपने कलाम को हमें दे रहा है, जिससे मैं भी बरकत पाऊंगा और आप भी बरकत पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए हम कलाम में चलते हैं, और कलाम का जो आज का मजमून है, those who got appointed are also anointed by God। अजीजों, पाक कलाम से कई बार इस बात का तलावत की जा चुकी है कि खुदा ने हमें चुना है, और ना सिर्फ चुना ही है पर हमें मसा भी किया है। आज के कलाम का मजमून यही है, खुदा ने जिन्हें चुना है उनका अभिषेक भी किया है। Those who got appointed are also anointed by God। हमने रोमियो सरकार की हुकूमत के बारे में कई बारी पाक कलाम में पढ़ा है कि उन दिनों में रोमियो सरकार की हुकूमत थी जिस समय खुदावंद यीशु मसीह का आना हुआ था, और रोमन सरकार की हुकूमत में रोमन सरकार धार्मिक कामों के लिए फरीसियों में से चुनकर उन्हें रबई अपॉइंट करती थी, और खुदा की तरफ से उनका अभिषेक कभी नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि वे राष्ट्रबाज नहीं ठहराए। जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने फरीसियों को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि वो जो कुछ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए किया करते थे। और मरकुस 8 और 36 में यूं लिखा है, अगर किसी इंसान को सारी दुनिया भी मिल जाए मगर वो अपनी जान का नुकसान उठाए तो उससे क्या फायदा होगा। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, पर तुमने शरीयत की गंभीर बातों को यानी इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया है। चाहिए ये था कि इन्हें भी रखे रहते और इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। अजीजों, जिस किसी में भी इंसाफ, रहम और इंसाफ की बातें दिखाई नहीं देती, खुदा की बुलाहट के बावजूद भी उनका मसा नहीं होता। फरीसी ना कभी खुदा के एकलौते बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए और ना ही कभी इंसाफ और रहम की बातों की ओर अपने चित्त को लगाया। उनमें से बहुतेरे हैं जिनको खुदा चुनता तो है, और वो जो अपनी काबिलियत और अपने कामों पे भरोसा रखते अभिषेक से महरूम रह जाते हैं। खुदा हमें चुनता है और हम पर उसका अभिषेक नहीं आता, क्योंकि हम अपनी काबिलियत को पहला दर्जा दे देते हैं। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अजीजों, यदि खुदा न चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी दुनियावी एजुकेशन और दुनियावी काबिलियत खुदा की नजरों में कोई माने नहीं रखती। शाऊल को खुदा ने इजराइल का बादशाह होने के लिए चुना,
اور सैमुअल नबी ने उसका अभिषेक भी किया और शाऊल ने अपनी काबिलियत के आगे खुदा के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया और वो किया जो खुदा के हुक्म के खिलाफ था और फिर खुदा का अभिषेक उस पर से उड़ गया। अगर हम पहला सैमुअल और उसकी 13वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पे इसका जिक्र आया है और हम देखते हैं कि शाऊल के अंदर बहुत बेसब्री थी और पहला गलत काम उसने ये किया कि जिस काम के लिए वो चुना ही नहीं गया उस काम को उसने अंजाम दिया। सैमुअल के हिदायत के बावजूद भी जिलाल में भस्म होने वाली कुर्बानी को खुद अंजाम दे दिया, जिसके लिए उसका अभिषेक नहीं हुआ, जिसका उसका चुनाव जिसके लिए नहीं हुआ था। और वही हम पहले सैमुअल 15 में भी पढ़ते हैं कि खुदा की तरफ से ये हुक्म हुआ, उसने सैमुअल को ये हुक्म दिया कि शाऊल को ये हुक्म दे कि जो लड़ाई में वो जा रहा है उसमें अमलेकियों की तमाम मिल्कियत को हलाक और तबाह करके सब कुछ नेस्तबूत करे। और पहला सैमुअल और 15वें बाब के चंद आयतों में 8 और 9 में पढ़िएगा, वहां पे लिखा है कि बादशाह आजा को उसने जिंदा पकड़ा और फिर उसे छोड़ दिया और इसी तरह सबसे अच्छी गाय, सबसे अच्छे बैल, सबसे अच्छे बछड़े और चिदा भेड़ के बछड़े और अच्छे अच्छे भेड़ के बच्चों को भी रख लिया। और ये सब करके शाऊल ने खुदा के साथ नाफरमान बर्दारी किया और उसका सबूत पेश किया। और हम उसके आगे अगर उसकी 13वीं आयत को पढ़े तो उसमें लिखा है कि जब सैमुअल जिलाल पहुंचा तो शाऊल ने सैमुअल से कहा, मुबारक हो, क्योंकि मैंने रब का हुक्म पूरा कर दिया है। ये कहकर उसने खुदा के सामने ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि खुदा को दुख भी दिया। अजीजों, अमल करने वाली बात यह है कि हम खुदा के फरमान बरदार रहें और उसके ताबे रहकर उसके हुक्मों की तामीर करें। खुदा हमारी फरमान बरदारी को पसंद करता और कबूल भी करता है। मैं ये मानता हूं कि खुदा ने हमें चुना जरूर है, पर क्या हमारा अभिषेक हुआ? क्या हम रूह के हिदायत में होकर चलते हैं? क्या हमारे अंदर वो सब्र है कि हम उसके हुक्म का इंतजार करें और खुदा के साथ फरमान बरदार बने रहें और फरमान बरदारी की कुर्बानी की भेंट उसे चढ़ाएं? पर होता यूं है कि जब हमारे ऊपर कोई आफत आती, कुछ भी होता है, तो हम तुरंत खुदा से मांगते हैं हमारा ये काम तुरंत हो जाए। हम इंतजार करना नहीं चाहते, हम फरमान बरदारी की कुर्बानी की भेंट उसे चढ़ाना नहीं चाहते। क्या हमारे ऊपर रूह पाक का मसा है? क्या उसके लिए हमने घुटने टेक कर खुदा के सामने अपने दिल को खोला? क्या हमने अपने आप को उसके सामने उंडेला और अपने दिल को नरम किया, अपनी चाहतों की कुर्बानी दी और कहा कि ऐ खुदा, मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो, सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो। हमारे सिर पर वो मसा का तेल डालकर मुझे मसा कीजिए कि मैं आपके लिए जीऊं और आपकी मर्जी को पूरा करता रहूं। लेकिन हम क्या ऐसा करते हैं? क्या हम उसकी मर्जी को और उसके जो पाक रूह हमारे लिए भेजा गया उसकी हुजूरी में होकर
हम उसके मर्जी को महसूस करते हैं। इसके लिए जरूरी ये है अजीजों कि हम घुटने टेक कर अपने आप को उसके सामने उंडेल दें, उससे मांगे कि ऐ खुदावंद मेरे ऊपर अपनी मर्जी को जाहिर कर, अपने अभिषेक से हमें भर, अपना पाक रूह मेरे ऊपर उंडेल दे, मेरा मसा कर कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं जो आपने मेरे लिए रखा है। उस मर्जी को पूरा करूं, ना कि अपनी मर्जी। आज हम अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुदा से नहीं पूछते क्या हमारी बुलाहट इसके लिए है या नहीं है। हमने देखा है कि आसमान के सारे पक्षी सुबह भोर में उठकर उसकी हमद और सिताइश के गीत गाते हैं और खुश होते हैं। क्या हम कभी भोर में उठकर उसके हुजूरी में आते हैं या कभी आए? ये एक सवाल है अजीजों। मैं मानता हूं कि आपके ऊपर खुदा की बुलाहट है, पर क्या आपको वो दर्शन मिला कि खुदा आपसे क्या चाहता है? आज हम थोड़ी देर के लिए उस जगह पे जाएंगे जहां खुदा के कलाम से दाऊद के दर्शन के बारे में कहा गया। चलिए हम उस जगह पे जाते हैं और दाऊद के दर्शन की ओर नजर डालते हैं। दाऊद हमेशा खुदा के दिल के करीब था और खुदा ने उसे सिर्फ चुना ही नहीं था, पर खुदा ने उसे मसा भी किया था और उस पे उसका बेशुमार मसा, भरपूर मसा था। जिस समय सैमुअल शाऊल के उन गलत कामों के लिए अफसोस और दुख और रंज कर रहा था, तो खुदा ने सैमुअल से कहा कि तू कब तक शाऊल के लिए दुख मनाता रहेगा? मैंने शाऊल को छोड़ दिया है और अब मेरा मसा उस पर से उठ गया है। खुदा ने सैमुअल से कहा कि मैंने यसी के खानदान से एक को इजराइल का बादशाह होने के लिए चुन लिया है। चुनांचे उठ और यसी को जाकर ये इतला दे कि वो अपने सारे बेटों को लेकर जियाफत में शामिल हो। यसी अपने 7 बेटों के साथ जियाफत में शामिल तो हुआ, पर उसने दाऊद को नकारा समझकर उसे पीछे भेड़ बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया। और उधर उन 7 में जो कि उस जगह पे मसा के लिए लाए गए थे, कोई भी खुदा के नजर में से नहीं गुजरा और ना ही उसे पसंद आया, ना ही उसे मंजूर हुए। अगर हम जबूर की किताब उसका 23वां बाब, जो कि हम बराबर पढ़ते रहते हैं, हमें जबानी भी याद है, और उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहां दाऊद पाक रूह से भरा हुआ और ये गीत गाता हुआ जंगल की ओर चला जा रहा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। और ये आवाज खुदा के कानों में पहुंच रही है जो उसे खुशनुमा बना रही है। और उधर यसी 7 बेटों को लेकर जो सैमुअल के सामने पहुंचा था, और एक एक करके वो उसके सामने से गुजरते जाते थे, पर खुदा ने सैमुअल को उनका अभिषेक करने नहीं दिया। इस पर सैमुअल ने यसी से पूछा कि क्या इनके अलावा भी कोई और है जिसे तूने अभी पेश नहीं किया? क्योंकि इनमें से खुदा ने किसी को नहीं चुना। तब यसी ने कहा, हाँ, एक छोटा बेटा बाकी रह गया है, लेकिन वो
भेड़ बकरियों की निगरानी करने के लिए खेतों में उनके साथ है। और सैमुअल ने यसी से कहा, फौरन उसे बुला ले। चुनांचे यसी छोटे को बुलाकर अंदर ले आया, यानी कि दाऊद को बुलाकर अंदर ले आया। और सैमुअल दाऊद और उसकी खूबसूरती को देखकर खुदा के नाम की तमजीद करने लगा। और उसी समय आवाज आई, सैमुअल उठ, यही है, इसको मसा कर। अजीजों, डेविड अपॉइंटेड ही नहीं, अनॉइंटेड भी था। और रूह कुदूस दाऊद के साथ हमेशा बना रहा, क्योंकि दाऊद हमेशा खुदा के हुक्म में और अपने पाक और उसके पाक रूह की निगरानी में चलता रहा और हमेशा खुदा के भय में बना रहा। रोमियो 8:30 में लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी यानी कि राष्ट्रबाज भी ठहराया, और जिन्हें राष्ट्रबाज ठहराया उन्हें महिमा भी दी। इन सिंपल वर्ड आई वुड से कि जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया वही है जो बुलाए गए हैं, दे आर कॉल्ड फॉर। और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पहला सैमुअल और उसके 16वें बाब उसकी 13वीं आयत से आप पढ़िएगा, वहां पे मिलता है। और वहां पे लिखा है कि सैमुअल ने तेल से भरा हुआ मेढ़े का सींग लेकर उसे दाऊद के सिर पर उंडेल दिया, उसका मसा कर दिया। अजीजों, और उसके सातों भाई वहां मौजूद थे और ये सब वो देख रहे थे। उन्होंने ये सब अपने आंखों के सामने होते हुए देखा। और उसी वक्त खुदा का रूह दाऊद पर नाजिल हुआ और सारी उम्र उसके ऊपर ठहरा रहा। और दूसरी बात जो रोमियो 8:23 में अभी हमने पढ़ा, जो हमने देखा राष्ट्रबाजी के ऊपर, तो उसका भी सबसे अच्छा उदाहरण हमको सेकंड सैमुअल और उसके दूसरी बाब और उसकी 4थी आयत में पढ़ने को मिलता है। आप पढ़िएगा वहां पे, सेकंड सैमुअल 2 और 4 में। इसको आप नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा। और वहां पे हम पढ़ते हैं कि एक दिन यहूदा के आदमी हेब्रोन में आए और उन्होंने दाऊद को मसा करके अपना बादशाह बना लिया। उसका मसा करके, उसका अभिषेक करके अपना बादशाह बना लिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें खुदा की मर्जी शामिल थी। डेविड वॉज जस्टिफाइड थ्रू गॉड। वो खुदा की ओर से राष्ट्रबाज भी ठहराया गया। और राष्ट्रबाजी का जो कि उस रोमियो की किताब में हमने अभी पढ़ा, उसके 8वीं और 30वीं आयत में जो हमने पढ़ा कि ये वही है जिन्हें तेरा जलाल भी बख्शा गया। एंड डेविड वॉज ग्लोरिफाइड ऑल्सो। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, सेकंड सैमुअल उसके 5वें बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक में यूं लिखा है, उस वक्त इस्राएल के तमाम कबीले हेब्रोन में दाऊद के पास आए और कहा, हम आपके हैं और आप ही के रिश्तेदार हैं। मांझी में भी जब शाऊल बादशाह था तो आप ही फौजी मुहिमों में इजराइल की क़ियादत करते थे। और रब ने आपसे वादा भी किया है कि तू मेरे कौम इजराइल का चरवाहा बनकर उस पर हुकूमत करेगा। जब इजराइल के तमाम बुजुर्ग हेब्रोन पहुंचे तो दाऊद बादशाह ने रब के हुजूरी में उनके साथ अहद बांधा।
रब ने उनकी हजूरी, खुदा के हुजूरी में दाऊद ने उनके साथ एक वाचा बांधी। क्या हमने, आपने वो वाचा खुदा से बांधी है? और जब उसने बादशाह होने के लिए रब से उनके साथ ये अहद बांधी और उन्होंने उसे मसा भी किया और इजराइल का बादशाह बना दिया। दाऊद 30 साल की उम्र में ही बादशाह बन गया। उसकी हुकूमत 40 साल तक रही। पहले 7 साल तक तो वो सिर्फ यहूदात का बादशाह था और उसका दारुल हुकूमत हबरून तक ही रहा, और बाद में बाकी 33 साल वो जेरूसलम में रहा और वहां पे रहकर यहूदात और इजराइल दोनों का बादशाह बना रहा। अजीजों, David was not only called for, but he was justified and then glorified, because he was not only appointed, but he got appointed many times by the virtue of God. He was always obedient to God and he always obeyed God's commandments. So God's mercy stayed upon him forever. मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं अजीजों, क्या आपने खुदा के सामने घुटने टेक कर अपनी बुलाहट का इजहार करते हुए कभी ये कहकर इकरार किया, आसमानी बाप, मेरा प्याला तेरी बरकत से लबरेज हो। आसमानी बाप, यकीनन भलाई और शफकत की बातें उम्र भर मेरे साथ साथ रहे और मैं जीते जी तेरे घर में सकूनत करूं। यदि आपने ऐसा किया है और यदि ऐसा है तो मैं कहूंगा आमीन, हालेलुया, आमीन, ऐसा ही हो। यू नो व्हाई? क्योंकि बुलाहट के साथ साथ आप रासबाज भी ठहराए गए और रासबाजी के साथ साथ खुदा का जलाल भी आपको बख्शा गया और उसके तख्त के सामने आपका नाम पुकार पुकार कर आपको वो जलाली मुकुट भी पहनाया जाएगा जिसके आप हकदार होंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आपका अभिषेक हुआ? क्या आपके सिर पर वो तेल उंडेला गया? क्या आपका मन पूरी रीति से शुद्ध हुआ है? अजीजों, इस साक्षीवाणी को सुनिए और अपने आप को पूरी तौर से तैयार करिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, उसका आने का समय बहुत करीब है और वो किसी भी समय आएगा और जब वो आएगा तो हम उसके साथ जा सकेंगे। अपने म्यूट को बंद कर ले प्लीज, अपने म्यूट को बंद कर ले प्लीज, अपने म्यूट को बंद कर ले प्लीज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आइए हम चले और अपने आप को तैयार करें। जब ये गाना मैंने तैयार किया था तो वो जूम पे था, लेकिन आज जूम हमारे बीच में नहीं है। मैं अपने सेलोफोन से आपसे मुखातिब हूँ और जब मैं इस गाने को आपके सामने रखता हूँ, मेरी आवाज तो नहीं है लेकिन जो कुछ भी है आपके सामने रखता हूँ, तो आप अपने मन को तैयार कीजिए। क्या आप यीशु के उस लहू में अपने मन को शुद्ध किया है आपने? क्या संपूर्ण भरोसा आप उसके ऊपर रखते हैं और उसके शुद्ध करने हारे लहू में आपने अपने आप को शुद्ध करते हुए उसे पुकारा है? तो आज खुदावंद आपको पूरी रीति से
अभिषेक भी करेगा। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हारे प्रभु में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, क्या तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए 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 हो। हाँ अजीजों, यदि हम संपूर्ण मन से उसके ऊपर अपना भरोसा रखते हैं और हमने अपने आप को उसके लहू में धो के बेदाग कर लिया है, तो वो आज अपना हाथ फैलाए हुए आपका अभिषेक करने के लिए आपके बीच में है। अपने आप को उसके सामने डाल दीजिए। इस समय हमारे बीच में ब्रदर इमैनुअल है, हमारे एल्डर। मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें दुआ में लेके चलें। एल्डर इमैनुअल सैमुअल। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. Thank you, Father, Son, and Holy Spirit. Hallelujah. 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 धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय प्रभु जो भी वचन हमें दिया गया उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हम आपके वचन पे चलने वाले बने प्रभु, उसको सुन के अनसुना ना करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमारा अभिषेक कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, मस्सा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु, और अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आने वाले सैटरडे में प्रभु हम जब जुड़ते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हमें और भी तैयारी का मन दीजिए पिता परमेश्वर। सारी याद और सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे बीच में पास्टर जगदीश है, वो हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके चलेंगे, और पास्टर डेविड हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. खुदावन का धन्यवाद करते इस अच्छे वचन के लिए जो आज हमें मिला है, और हमें सचमुच हर समय परमेश्वर के अभिषेक को मांगना है ताकि उसका काम हमारे जीवन से होने पाए। आइए हम खुदावन की सिखाई प्रार्थना में चलेंगे। आइए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ कर। मैजमेंट न पढ़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। खुदा उनकी पाक हजूरी में अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफाकत और शफकत, खुदा इस वक्त जितने भी प्रभु यीशु नासरी इस ग्रुप के साथ हैं उनके साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।